Very good morning, dear students. Hope you all are safe and fine at your home. In social studies, today we will see chapter number 5, and the name of the chapter is Agriculture and Industries. Can you think a country that has no industries? Means in a country where there are no industries and that country is dependent only on agriculture. Can that country be a progressing country or a progressed country or a strong nation? No. Let's see how in this chapter. Okay. In India we are having vast natural resources. Am I right? See here it is given. You have seen that our country has wide natural resource, vast natural resources. Which all natural resources we have learnt about the chapters? Soils, forest and agriculture we will see. Now we use these natural resources to meet our various needs. हमारी जो रोजिंदी needs है उसको हम भरपाई कर पाए, तो उसके लिए we are using this natural resources. For example, we use our soil and water resources in agriculture to produce food. Soil resource है और water जो natural resource है, we are using this natural resource in agriculture for producing food. Okay. Our forest and mineral resources are used in industries to produce various other goods. जो दूसरे नेचुरल रिसोर्स है जिनके बारे में हमने आगे चैप्टर्स पढ़े हैं, फॉरेस्ट और मिनरल रिसोर्सेज, दैट आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं फॉर मेकिंग वेरियस गुड्स. डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इज एसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री. व्हाई द डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री. जितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर डेवलप होगा हमारी कंट्री का, उतना ही ज़्यादा हमारी कंट्री आगे प्रोग्रेस करती है. ओके, सो दिस बोथ गोज इन हैंड टू हैंड. एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ये दोनों का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो ही जो कंट्री है वो प्रोग्रेस कर पाती है. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट एग्रीकल्चर. Nearly 2/3 of the working population of India earns its livelihood from agriculture. इंडिया के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से ऐसे हैं जो पूरे लाइवलीहुड रोजिंदे के खर्चे के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है. It is therefore very important for us. So the agriculture is very important for our country. You have already seen that India has several different soil types and climatic conditions. This also we have learned in previous chapters, soils of India and types of soils और उसके climatic condition. That is why we produce wide variety of agriculture products such as हमारे कंट्री में we are having different types of soils and at the same time in different regions different climatic conditions are there. इसीलिए हम लोग variety of crops, इंडिया variety of crops प्रोड्यूस करती है. कैसे कैसे crops इंडिया इज प्रोड्यूसिंग? तो कि राइस, wheat, millets, pulses, cotton, jute, tea, coffee, sugar cane, spices and oil seeds, ये सारे products India is producing. Okay, in agriculture. Now first is rice. Rice is the most important food crop of India, as we all are knowing. In India, rice is the important food crop. It is the staple food of the people of साउथर्न एंड ईस्टर्न इंडिया. जो साउथर्न और ईस्टर्न इंडिया का रीजन है वहाँ ये स्टेपल फूड है. स्टेपल फूड यानी कि मेन फूड में राइस को शामिल किया गया है. राइस ग्रोज बेस्ड इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट. रिवर बेसिन्स एंड डेल्टास आर आइडियल फॉर ग्रोइंग राइस. वाई दे आर आइडियल फॉर ग्रोइंग राइस? क्योंकि राइस को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो बेसिन और डेल्टास वाला जो रीजन है वहाँ राइस को जो पानी की ज़रूरत है वो मिल जाती है. सो
that are ideal region for growing rice. It is mainly grown in कौन से स्टेट्स में ग्रो होती है तो कि वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, Assam, Odisha, Kerala, Telangana and Karnataka. These are the names of the states जहाँ rice grow होते हैं. You will see this in the map also and in the video also. Okay. Next crop is wheat. Wheat is the staple food of the people of northern India. इंडिया के जो नॉर्थन पार्ट में जितना रीजन है वहाँ रहने वाले लोगों का स्टेपल फूड, मेन फूड में व्हीट शामिल है. गेहूँ लोग ज़्यादा खाते हैं नॉर्थन इंडिया में. इट इज़ मेनली ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. नेक्स्ट इज मिलेट्स. मिलेट्स यानी कि जो धान्य हम बोलते हैं. मिलेट्स इंक्लूड ज्वार, बाजरा एंड रागी. रागी इज ऑल्सो काइंड ऑफ क्रॉप. वो भी दाने ग्रेन्स जैसे ही होते हैं, जैसे ज्वार और बाजरा है वैसे रागी के भी ग्रेन्स आते हैं. दे आर ग्रोन इन, कहाँ ग्रो होते हैं क्योंकि राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, Telangana and Karnataka. These are also the names of the states where millets are growing. Okay. दूसरे कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं तो कि पल्सेस. पल्सेस इंक्लूड कैसे कैसे पल्सेस, मूंग, मसूर, उड़द, ये सारे पल्सेस जिसको इन गुजराती से कठोर, मग, ये सारे मसूर, उड़द, ये सारे पल्सेस है. ऑयल सीड्स कैसे कैसे ग्रो होते हैं तो कि मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड लीन सीड्स. देखो ये वीट का, गेहूं का खेत है. ये सारे ऑयल सीड्स भी इंडिया में ग्रो होते हैं. ये मस्टर्ड मीन्स जिसको बोलते हैं हम राइडो. ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली का ऑयल निकाला जाता है. लीन सीड्स. ओके. These are grown in large quantities in several states of India. ये सारे इंडिया के कहीं सारे स्टेट्स में ग्रो होते हैं. लीन सीड्स का पिक्चर आप वीडियो देखोगे उसमें आएगा. लीन सीड्स क्यों क्या बोलते हैं उसका पिक्चर देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा. ओके. दे आर ऑल्सो दी सीड्स फ्रॉम विच ऑयल इज टेकन आउट. ऑयल जहाँ इसमें से निकलता है, ऑयल सीड्स. शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन. जो शुगर होती है वो किस में से बनती है? शुगर केन जूस में से. तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन. तो वी शुड फील प्राउड कि जितनी चीनी खाई जाती है उतना इंडिया पूरे वर्ल्ड में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का. इट इज़ मेनली ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तेलंगाना. ये सारे स्टेट्स में शुगर केन ग्रो होती है. कॉटन इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ बनाने में कॉटन जो यूज होता है. इट इज़ मेनली ग्रोन, कहाँ ग्रो होता है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा एंड तेलंगाना. जूट है. जूट का पिक्चर देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, वो भी वीडियो में दिया है जूट का पिक्चर. जूट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बैग्स एंड कारपेट्स. जिसकी थ्रेड जैसा, फाइबर जैसा मटेरियल होता है जूट का, और वो बैग और कारपेट्स बनाने में हेल्प करती है. इट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड. पूरी वर्ल्ड में इंडिया का टी प्रोडक्शन में सेकेंड नंबर आता है. टी ग्रोज बेस्ट इन हिली एरियाज विथ अबंडेंट रेनफॉल. बहुत सारे रेनफॉल और हिली एरियाज में टी ज़्यादा ग्रो होती है. इट इज़ मेनली ग्रोन इन आसाम, वेस्ट बंगाल एंड द नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु का जो नीलगिरी हिल्स है वहाँ टी ग्रो होती है. नेक्स्ट इज कॉफ़ी. कॉफ़ी इज मेनली ग्रोन इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. कॉफ़ी में ये जो स्टेट्स है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, वहाँ कॉफ़ी ग्रो होती है.
स्पाइसेस यानी कि जो सारे मसाले जो आप सब्जी बनाने में जो टेस्ट देते हैं अपने खाने को, वो स्पाइसेस में क्या क्या आता है, तो कि क्लोव्स, कार्डेमोम, पेपर, चिलीज, कोरिएंडर सीड्स, टर्मरिक एंड जिंजर। दीज आर द नेम्स ऑफ स्पाइसेस। ये आपको याद होने चाहिए। अगर कोई आपको स्पाइसेस के नाम पूछे तो दीज आर द नेम्स ऑफ स्पाइसेस। ये स्पाइसेस भी हमारे इंडिया में ग्रो होते हैं। नाउ सो दीज आर मेनली ग्रोन इन केरला एंड कर्नाटका। ये सारे स्पाइसेस केरला एंड कर्नाटका में ग्रो होते हैं। बिफोर दैट, डिड यू नो इंडिया ग्रोस ओवर 50 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पाइसेस। 50 जितने स्पाइसेस इंडिया में ग्रो होते हैं। फ्रॉम एंशियंट टाइम, बहुत टाइम पहले से इंडिया में जो स्पाइसेस है वो टॉप स्पाइस प्रोड्यूसर में टॉप नंबर आता है, और वो पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट भी करती है स्पाइसेस, विच इंडिया। ओके, नाउ अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। Green Revolution was launched in India in the 1960s. Under this, the government took several steps to increase agricultural output in India. Green Revolution है वो इंडिया में जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है, जिसमें खेती का बहुत आगे तक ले जाना एक मोटो था, वो 1960s में लॉन्च हुआ था इंडिया में। तो उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए थे, तो कि यूजिंग बेटर क्वालिटी सीड्स, जो बीज खेत में जो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए पहले सीड्स बोए जाते हैं, वो बीज बहुत अच्छी क्वालिटी के गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी। सेकेंड स्टेप दे टूक इज इंक्रीजिंग एरिया अंडर इरिगेशन के लिए, यानी कि खेती काम के लिए उसने एरिया बढ़ा दिया। यूजिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स और मैन्योर खातर जिसको गुजराती में बोलते हैं, वो भी अच्छे क्वालिटी के देने लगे एग्रीकल्चर डेवलप करने के लिए। यूजिंग मॉडर्न मशीनरीज सच एज ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स और ट्रैक्टर्स जैसे जो मॉडर्न मशीनरीज खेती के लिए यूज होते हैं, फार्मिंग के लिए यूज होते हैं, उसका यूज करने लगे। उसका रिजल्ट क्या आया? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज गॉन अप सेवरल टाइम्स। कितने मल्टीपल्स में हमारा जो एग्रीकल्चर था वो डेवलप हो गया, उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होने लगा। टुडे वी आर नॉट ओनली सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन बट वी ऑल्सो एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हमको भी बाहर से कुछ लाना पड़ता है, बाहर के देशों से, पर कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। हाउएवर द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज कॉज्ड ग्रेट डैमेज टू द सॉइल इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर, जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर होता है, वो जितना खेत में ज़्यादा यूज़ करोगे तो थोड़े टाइम तक वो प्रोडक्शन देता है, क्रॉप्स प्रोडक्शन अच्छा होता है, बट आफ्टर लॉन्ग यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम होने लगती है, और वो जितना केमिकल उसमें सॉइल मिट्टी में मिलाओगे तो धीरे धीरे करके वो सॉइल को डैमेज कर देती है। तो ऐसा भी इंडिया के कई सारे पार्ट्स में हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज। ये थी एग्रीकल्चर की बात, और ग्रीन रेवोल्यूशन जो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में जो स्टेप्स लिए उसकी बात थी। नाउ वी विल लुक इन द डिफरेंट another hand, that is on industries, agriculture and industries. Look around your house. आपके घर के आजू बाजू में देखो, what you will see? You can see several things. कई सारे ऐसे things होंगे, टेलीविजन, बुक्स, पेन, पेंसिल्स, utensils, clothes, sugar, etc. They are all finished goods. Finished goods यानी कि अच्छे से बने हुए आइटम्स है। ओके, वी कैन यूज दिस गुड्स। हम वो गुड्स का, वो सामान का यूज कर सकते हैं। यहाँ गुड्स मीन्स दैट ऑब्जेक्ट और वो सामान, फिनिश्ड गुड। द मटेरियल्स वी नीड फॉर मेकिंग फिनिश्ड गुड्स आर कॉल्ड रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स यानी कि ये
टेलीविज़न बनाने में जितना भी मेटल है, उसके अंदर बैटरी है, जो कुछ भी है, उसकी बाहर की बॉडी है, ये सारे, ऐसे तो टेलीविज़न बनता नहीं है, तो उसके पहले उसको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है. देन बाय प्रोसेसिंग they come to the finished goods. Okay, wood, ores, cotton, sugar cane etc. are all raw materials. ये सारे हैं raw materials. वुड है तो वुड से फर्नीचर बनता है, यूटेंसिल्स बनते हैं. तो वुड का जहाँ जहाँ फिनिश्ड गुड्स है वो कच्चे रॉ मटेरियल उसका क्या है, वुड. ओर्स, ओर्स यानी कि धातु, मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, ये सारे ओर्स का, ओर्स है वो रॉ मटेरियल है और उससे कुछ सामान बनते हैं. कॉटन, तो कॉटन रॉ मटेरियल है, तो कॉटन का कपड़ा जो फिनिश्ड गुड है वो कॉटन का फिनिश्ड कॉटन क्लॉथ है, वो कहाँ से है, रॉ मटेरियल उसका कॉटन. तो कॉटन में से कॉटन का कपड़ा बनता है. एम आई राइट? सो और ऑल ये सारे हैं रॉ मटेरियल्स है. दे आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स इन इंडस्ट्रीज. फिनिश्ड गुड्स यानी कि सामान, डिफरेंट थिंग्स बनाने में ये रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में. ओके, लॉट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज यू हैव रीड अबाउट गो इनटू मेकिंग ऑफ दिस गुड्स. कितने सारे और भी नेचुरल रिसोर्सेज है जो फिनिश्ड गुड्स बनाने में यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द पेपर यूज्ड इन बुक्स इज मेड फ्रॉम वुड. जो पेपर बना है आपके बुक्स का, मैंने भी एग्जांपल दिए ऊपर, तो ये भी कहाँ से बनते हैं, ये फिनिश्ड वुड है. तो पेपर बनाने के लिए उसका रॉ मटेरियल कौन सा है, वुड. द मेटल यूज्ड इन यूटेंसिल्स कम फ्रॉम ऑर्स. ऑर्स यानी कि कच्चे धातु में से जो बर्तन बनाने में मेटल यूज हुआ है वो कहाँ से है, उसका रॉ मटेरियल ऑर्स. एंड द प्लास्टिक यूज्ड इन योर टेलीविजन कम्स फ्रॉम पेट्रोलियम. जो प्लास्टिक है टेलीविजन बनाने में जो प्लास्टिक यूज हुआ है वो कहाँ से है, आता है, तो कि पेट्रोलियम. पेट्रोलियम में सारी चीज़ें रॉ मटेरियल दे आर इन कंबाइंड फॉर्म. उसको इंडस्ट्रीज में ले जाके उसमें से पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक, वैक्स यानी कि जो कैंडल की वैक्स आती है, ये सारी चीज़ें बाइफरगेट की जाती है. फ्रॉम दैट प्लास्टिक जो अलग किया है वो टेलीविजन बनाने में हेल्पफुल रहता है. तो दिस आर द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम विच फिनिश्ड गुड्स आर फॉर्म्ड इन द इंडस्ट्रीज. नाउ डिफरेंट स्केल्स ऑफ इंडस्ट्रीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, स्केल बेस में इंडस्ट्रीज होती है. देर आर स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज इंडस्ट्रीज. कुछ इंडस्ट्रीज छोटी होती हैं, देर आर लार्ज इंडस्ट्रीज. A small industries may have fewer people working in it. Small industries में बहुत कम लोग काम करते होंगे, but in large industries employ thousands of people. एक साथ हजारों लोग भी काम करते हैं और वो है large industries. Small industries में कुछ ही लोग काम करते हैं और वो कुछ ही मशीन से वो small industries चलती होती है. Based on the number of people working in it, इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर क्लासिफाइड. इंडिया में जो इंडस्ट्रीज है वो कितने नंबर ऑफ पीपल काम करते हैं इंडस्ट्रीज में, उस हिसाब से इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया है. ओके, यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड मेकिंग रोप आउट ऑफ कॉयर, अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. रोप यानी कि डोरी बनाते हैं. ओके, तो कैसे कैसे इंडस्ट्रीज में क्लासिफाई किया गया है, तो कि कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. ये तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दैट वी विल सी. कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय वेरी फ्यू पीपल. कुछ ही लोग कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम करते हैं. दे वर्क विथ सिंपल टूल्स, और उसके पास बहुत मशीनरीज भी नहीं होती, कुछ ही टूल्स से वो इंडस्ट्रीज में काम किया जाता है और कुछ ही लोग वे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं. दे नॉर्मली यूज लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स. लोकली यानी कि जहाँ ये कॉटेज इंडस्ट्रीज है उसके आजू बाजू में जितना रॉ मटेरियल है उससे ही ये इंडस्ट्रीज काम करते हैं. तो कैसे इंडस्ट्रीज आती है कॉटेज में, हैंडीक्राफ्ट्स, पॉटरी, हैंड वूवन एंड एम्ब्रॉयडरीड क्लॉथ,
and baskets are normally made in cottage industries. तो ये सारे इंडस्ट्रीज में ऐसे सारे प्रोडक्ट्स गुड्स बनाए जाते हैं. Some cottage industries also make shoes, shawls and toys. कुछ cottage industries में shoes भी बनते हैं, shawls और toys भी बनते हैं. So this was a cottage industries. Now small scale industries use small machines and employ more people. कॉटेज इंडस्ट्रीज से थोड़े ज़्यादा लोग काम करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, और कुछ स्मॉल मशीन्स भी होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में. तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बनता क्या क्या है, विच ऑल प्रोडक्ट्स आर मेड, तो कि फर्नीचर, यूटेंसिल्स, प्लास्टिक गुड्स, प्लास्टिक का जो सामान है, एंड इलेक्ट्रिकल का जो सामान है, आर सम गुड्स मेड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ऐसे सारे सामान स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बनते हैं. इन इंडिया विच हैज अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, cottage industries and small scale industries are particularly useful for employing a large number of people. कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंडिया में बहुत काम होते हैं, यूजफुल होते हैं, बिकॉज उसमें ज़्यादा लोग जो एम्प्लॉय होते हैं वो रह पाते हैं. लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. सच इंडस्ट्रीज कैन बी सेट अप इजीली इन रूरल एरियाज टू प्रिवेंट द पॉपुलेशन फ्रॉम मूविंग टू सिटीज. सिटीज़ में जाने से वो जहाँ जो पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन है, उसको सिटीज़ में काम के लिए जाना नहीं पड़ेगा और उसको उसी एरिया में जहाँ वो रहते हैं उसमें ही काम मिल जाता है. एंड सेकेंड थिंग, दे आर इजीली सेटअप. बहुत कुछ रूरल एरियाज में मीन्स कॉटेज विलेज जैसे एरिया में भी ये इजीली आसानी से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज सेटअप हो जाते हैं, और वहाँ के जो लोग हैं उसको काम ढूंढने के लिए सिटीज़ में ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, उसको उसी एरिया में काम मिल सकता है. सो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. सॉरी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. नाउ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ पीपल. हजारों लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं लार्ज मशीन्स के साथ, एंड प्रोड्यूस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज. उसके नंबर ऑफ गुड्स क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा होती है, हजारों लोग काम करते हैं और बड़े बड़े मशीन्स काम करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में. वहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो कि टेक्सटाइल्स, स्टील, ऑटोमोबाइल्स एंड शिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड, बनते हैं, मैन्युफैक्चर्ड in large scale industries. It is very expensive to build and start a large scale industries. उसका expense बहुत ज़्यादा होता है सेटअप करने के लिए. However, modern methods of production can be more easily used in large scale industries. जो modern methods है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो large scale industries में easily use करते हैं. Therefore, better goods can be produced more cheaply. ज़्यादा और बेस्ट क्वालिटी के गुड्स लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में अच्छे से प्रोड्यूस हो सकते हैं. दैट इज वाई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर बीइंग एनकरेज्ड इन इंडिया. उसको बढ़ावा दिया है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को इंडिया में. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर एज फॉलोज. नाउ वी विल सी द नेम्स ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड वेयर दे आर लोकेटेड इन जमशेदपुर. कहाँ ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आई है. तो फर्स्ट इज स्टील प्लांट्स. स्टील प्लांट्स इन विशाखापट्टनम, बोकारो, राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर एंड भिलाई. ये है स्टील प्लांट्स लोकेटेड के स्टेट्स के नाम. नाउ टेक्सटाइल्स इन मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, कानपुर एंड कलकत्ता. दिस आर द टेक्सटाइल मिल्स. हैवी इलेक्ट्रिकल गुड्स कहाँ बनते हैं, इन भोपाल एंड रांची एक्सेट्रा. ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्रीज गुरेगांव, पुणे, चेन्नई
etc. See in the picture you can see the Tata iron and steel plant in जमशेदपुर में जो टाटा कंपनी है आयरन और स्टील प्लांट की, उसका एक पिक्चर दिया है. See you can see large scale industries, वो होती भी बड़ी है, हजारों लोग काम करते हैं with large machines and they produce large quantities of goods. Shipbuilding in Visakhapatnam, Kochi and Mumbai. एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट जहाँ प्लेन ये हेलीकॉप्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज वेर दे आर लोकेटेड इन बेंगलुरु एंड कानपुर. ऑयल रिफाइनरीज कहाँ कहाँ इंडिया में पाई गई है, तो कि आसाम, मथुरा, गुजरात एंड बिहार, ये स्टेट्स में ऑयल रिफाइनरीज की इंडस्ट्रीज आई है. देर आर न्यूमरस अदर इंडस्ट्रीज इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, और भी कई सारे इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, वो ऐसे प्रोडक्ट सीमेंट, पेपर, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स, ये सारे चीज़ों की, थिंग्स की भी, गुड्स की इंडस्ट्रीज इंडिया में आई है. इन द पास्ट फ्यू ईयर्स टेलीकॉम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेस और सोर्सिंग, ये है उसकी इंडस्ट्रीज भी इंडिया में लास्ट कई सारे इयर्स में डेवलप हुई है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आईटी फील्ड और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ इंडस्ट्रीज हैज़ बीन ग्रोन टर्मेंडसली, यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है ये इंडस्ट्रीज इंडिया में लास्ट कुछ सालों से. इंडिया इज नाउ रिगार्डेड एज अ लीडर इन मेकिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने में इंडिया एक लीडर के जैसे काम करता है. बेंगलुरु है, चेन्नई है, हैदराबाद आर मेजर सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसिंग सेंटर्स. इसलिए जो आईटी वाले द स्टूडेंट्स फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड एंड इंजीनियर, दे आर मोस्टली दे यूज टू सेटल इन चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु. दिस आर द स्टेट्स मेजर सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसिंग सेंटर्स है. सॉफ्टवेयर का काम वहाँ बहुत अच्छे से होता है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज. ओके, थैंक यू. Children, can you recognize the image? These are wheat flakes. But wheat growing in our fields is different, isn't it? Yes, you're right. Those are grown in fields using soil and water and then taken to industries for processing into finished food items like these. There is a complex chain of crops and finished goods that exists. Let us learn more about it. Nearly 2/3 of working population in India is engaged in agriculture. India, having different types of soils and weather conditions, produce variety of crops for the people of the country. Our country exhibits different types of soils and weather conditions which produce variety of agricultural crops for our country. In order to understand the importance of agriculture in India, one has to study the nature of crops, conditions of growth and distribution of these crops in India. There are variety of crops which grow in India like rice, wheat, millets, pulses, cotton, tea, coffee, sugarcane, spices, and oil seeds. Rice is the most important food crop and a popular staple food for the people of India and grows well in hot and wet climate, particularly along river basins and deltas. West Bengal is the largest producer of rice in India. Other states producing rice includes Punjab, Haryana, Bihar, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Assam, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu. India ranks second in world in wheat production
and it is the most important staple food for the people of North India. Wheat is produced in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. Wheat requires hot and dry climatic conditions for its growth, which is favored by these states. Millets are small seeded cereal grains used as food and fodder. Millet is grown in Rajasthan, Gujarat, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Pulses are of various types like moong, masoor, urad, rajma, chickpeas, chana dal, etc. India is the second largest producer of sugarcane in the world after Brazil. Main states producing sugarcane in India are Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Karnataka and Tamil Nadu. The clothes which we wear are made from cotton. It is a tropical crop and grows well in warm areas having high rainfall about 450 to 750 centimeter and temperature around 35 to 40 degrees Celsius. This is why states like Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu are leading producers of cotton in India. Jute is used for making bags, carpets, furniture, etc. Main jute-producing states are West Bengal, Assam, Bihar, Maharashtra, Andhra Pradesh and Orissa. India is the second largest producer of tea in the world after China. It grows best on hills with heavy rainfall, therefore grown in Assam, West Bengal and Nilgiri Hills of Tamil Nadu. Mainly grown in South India, that is Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Cardamom, turmeric, cloves, chilies, coriander seeds are important spices grown in India. India has become self-sufficient in agricultural production and also exports these crops to all major countries of the world. But earlier, India used to face food shortages due to less agricultural production. How come India has now become so self-sufficient in agricultural production? It is because of Green Revolution. Green Revolution was a movement started in 1960s in India. Government took several steps with an objective to increase agricultural production of the country and make India a self-sufficient and self-reliant country. Those steps included using good high-yielding variety of seeds, increasing the area under irrigation, using manures and fertilizers, and using modern machinery like tractors and harvesters for agricultural production to increase per hectare yield. As a result of Green Revolution in India, the agricultural production had gone up with each successive year. Major achievements were observed for wheat and rice, followed by other crops in the states of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. All the goods we see and use in day-to-day life are known as finished goods. These are made from raw materials like clothes from cotton, paper from wood, metals from ores, sugar from sugarcane. These raw materials can be agricultural materials like cotton, jute, wood, sugarcane, etc., or can be mineral-based raw materials like coal, plastic, and petroleum. Industry refers to an economic place where conversion of raw materials into finished goods takes place. Industries and agriculture both are essential for the progress of the economy because they are dependent on each other. There are two types of industries basically. Small industries have small number of people working, while large industries have thousands of people working in the same industry. Based on number of people employed,
industries in India can be classified as 1. Cottage industries, 2. Small-scale industries, 3. Large-scale industries. Cottage industries are those industries which employ small number of people using simple tools and locally available raw materials. These industries include cotton and jute textile industry, handicraft, basket, shoe and toy industries. Small-scale industries are those industries which employ more people using small machines. These industries are furniture, utensils, plastic goods and electrical goods industry. Cottage and small-scale industries are more useful in India, having a large population as they employ large number of people. Moreover, these industries can be easily set up in rural areas and thus help in checking out migration of village population to cities for employment. Large industries are those which employ thousands of people producing large quantities of goods by using large machines, including textile, iron steel industries, automobile and ship industry. It is important large-scale industries of India. Important iron and steel plants are ISCO, Burnpur, TISCO, Jamshedpur, and MISCO, Karnataka, Vishakhapatnam, Bokaro, Rourkela, and Durgapur. Important cotton textile industries are located in Mumbai, Ahmedabad, and Surat. Important jute industry are located in Kolkata. Important oil refineries of India are Digboi Refinery, Assam, Mathura Oil Refinery, Uttar Pradesh, Koyali Refinery, Gujarat, and Barauni Refinery, Bihar. Important shipbuilding industries are located in area which has good accessible networks with the rest of the world. Important shipbuilding industry are located in Vishakhapatnam, Kochi, and Mumbai, engaged in international trade. Other important industries in India are heavy electrical goods, automobile, aircraft manufacturing, computer software, telecom, cement, paper, chemicals, and fertilizers industries. Agriculture and industry both go hand in hand because they depend on each other for raw materials and then finished products to meet the demands of people. That is why agriculture and industry both are equally important for our economy. Thank you. A presentation by Extra Marks.